Hi, this is Danish Gani and welcome to my own channel where I'm just going to feature a very new thing that is that is commonly known as English, but I'm just doing it again for the sake of people, because they have requested me not to mention about the reason why you are doing this, but the reason why I'm doing this is because actually I've tried everything, and I've tried drawing, I've tried everything, but I think I should also make the use of my own language skill, which I'm appropriate for. So I'm actually making the videos for those who want to learn English and who are just struggling to get the insight of English, and also to enact, to equip themselves for the better result in the future. So actually जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ वो केवल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस, और मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस मैंने 5 years टीचिंग की है. दैट इज़ नॉट द बिग एक्सपीरियंस, बट आई हैव actually I was also struggling at the time, and now I have been competent about this. So I would not say that I'm a master in English, or I have done a PhD or anything degree that is related to the language skill, but I have experience by reading, by speaking, by watching, and by also getting the environment about that. Actually this time I'm in Saudi Arabia and I don't have any type of surrounding about English people, but despite of that I'm also competent about this. It is not my own ability, it is a naturality that, and it's my own love to the language skill. Actually when I came here I was unaware of Arabic language, and this is also great result that I have come for, is that I have learned Arabic. And actually I'm not a fluent in Arabic, but I have a little bit knowledge about Arabic, and I can guide you to learn Arabic. So leave it alone. The purpose of this video is to teach you, to tell you the best way to speak in English, and I think I'm just going to share some points about how to speak in English in a fluent manner. Well, तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे जूनियर है या फिर जो मुझसे सीनियर है, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो भी इन अ शॉर्ट टाइम, और ओनली उनको जो सीखना है वो केवल शॉर्ट टाइम में सीखना है, वो भी इतना सीखना है कि दे कैन कम्युनिकेट विद अदर्स एज सिंपल एज दे कम्युनिकेट इन हिंदी. ओके, मतलब ये कि जैसे कि वो बात करते हैं डेली लाइफ में इन हिंदी में बात करते हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज में, मान लीजिए उर्दू में बात करते हैं, तो उतना ही सिंपल उनको लगे जितना सिंपल वो हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश भी उतनी ही सिंपल लगे. और ये कैसे हो सकता है? जब आप प्रैक्टिस तो वो है ही, साथ में आपको नॉलेज हो, धीरे धीरे नॉलेज भी होती जाए और प्रैक्टिस भी होती जाए. साथ में वो नॉलेज इतनी सिंपल होनी चाहिए दे कैन यूज़ एवरी टाइम और एनीवेयर. मैं मानता हूँ कि डीप नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, and but the deep knowledge cannot come until you are not interested in something. जब तक कि तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगे, या फिर उसका सिंपल जो फेस है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कि आपको डीप नॉलेज में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं. तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले सिंपल जो है आप कवर करें, उसके बाद फिर डीप नॉलेज में जाएँ, तो डीप नॉलेज ऑटोमेटिक यू विल कवर इट. जैसे कि मैं अभी आपके सामने इंग्लिश स्पीक कर पा रहा हूँ, ये मैं 4 साल पहले नहीं कर सकता था. क्यों? क्योंकि I was also struggling, and I was teaching, I was also learning every day. I was just watching the news. मैं न्यूज़ चैनल देखता था, टीवी सीरियल्स देखता था, और मैं क्या बोलूँ, मतलब कि मिरर के सामने I would speak half an hour, 10 or 15 minutes. लेकिन उस टाइम I was not capable of speaking in English just like now. I'm just doing it fairly. जैसे कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ ना, ऐसा मैं 4 साल पहले नहीं करता था. वो एक्सपीरियंस मेरा अभी काम दे रहा है, और एज आई हैव गॉट इनसाइट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय एक्सपीरियंसिंग द नेचुरल environment, and also natural people that they would speak in English. Okay, well, anyway, I'm here to tell you that short video, short time, short knowledge, धीरे 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 you'll
प्रोग्रेस टू द डीप नॉलेज। आप डीप नॉलेज की तरफ जाएंगे, डीप मतलब जितना आप गहराई में जाते जाएंगे उतना ही मज़ा आएगा। तो पहले मज़ा आने के लिए तो सबसे पहले आपको इंटरेस्टिंग पार्ट तो समझ में आना चाहिए, और इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा टाइम दे के ही सीखा जाता है, क्योंकि बड़े काम तभी होते हैं जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं और वो भी प्रॉपरली लेते हैं। दैट्स ऑल आई वांट टू से। वेल, बिफोर without wasting any time, I would like to proceed my own video with a great step, which is the beginning step, जो कि फंडामेंटल है। अगर वो आपको नहीं मालूम तो आई थिंक यू आर नॉट गना experience better, or you're not gonna learn better if you're not aware of them. So first of all, noun क्या है कि नाउन देखिए 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको काउंट कर देता हूँ। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। आई एम नॉट customizing in a arranged way, but I'm just doing it randomly. So noun, pronoun, I forgot. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, उसके बाद subject and predicate, उसके बाद इसमें डिटेलिंग होती है। तो ये जो 4-5 चीज़ें ये तो आपको ज़रूर याद रखनी है। मैं आपको डिटेल में बात के बताऊंगा, जो कि डिटेल आपको थ्रू आउट द लर्निंग आएगी। मैं आपको अगर डिटेल बताने लग जाऊंगा तो आई थिंक यू आर नॉट गोना इंटरेस्ट इन द वीडियो, एंड यू आर नॉट गोना टेक इंटरेस्ट इन लैंग्वेज ऑल्सो। यू विल से दैट, आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा हार्ड है यार, ये आई थिंक आई एम नॉट गोना कवर इट, और आई एम नॉट एबल टू स्पीक, और आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस मोमेंट। तो तुम्हारे लिए और आपके लिए आई थिंक बहुत ही हार्ड स्टेप होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको सिंपल से सिंपल चीज़ आपको समझ में आएगी, तब आप हार्ड की तरफ जाएंगे। तो पहली सिंपल चीज़ कि आप कुछ चीज़ें आप सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट लीजिए। वो आप चाहे कहीं से भी लें, कुछ भी करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दिस इज अ प्रोवर्ब। ये कहावत है कि जो धीरे धीरे चलता है और लगातार चलता है वही जीतता है। तो आई थिंक it's gonna relate to you. The same thing gonna happen with you. So I was saying that noun, pronoun, verb, adverb, adjective, subject, predicate. तो let's start from noun. Noun से start करते हैं। Noun क्या है कि जब भी हम इंग्लिश में कुछ भी बात करते हैं, anything we talk about, आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी आपके सराउंडिंग जो भी दिखता है। देखो मैं सिंपल चीज़ में बताऊंगा, 1 या 1 और 2 लाइन्स में, वो आपको आई थिंक यू विल हैव टू फिट इन योर माइंड, और ओनली देन यू कैन गेट द रिज़ल्ट प्रॉपरली। तभी आप सीख सकते हैं जब तक कि आप अपने माइंड में ये सब चीज़ें 1-1 लाइन 2-2 लाइन की चीज़ें फिट नहीं कर लेते। जैसे कि आप रट्टा लगा सकते हैं, आई थिंक इट्स गोना गेट यू मोर। तो आप शुरुआत कीजिए कहीं से भी, I don't care. You have to think that you are interested in language or not. If you are interested, then you will proceed with me. Otherwise, move on. Well, I was saying that noun. देखिए noun क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें जितनी भी नज़र आती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तो किसी नाम, किसी चीज़ के बारे में, कोई आदमी के बारे में, कोई भी जो तुम्हें नज़र आ रही है, मान लो टेबल है, मैं हूँ, माइक है, या फिर आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, और कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप शर्ट पहने हैं और आप कोई भी कुछ भी देखें आपको दिखाई दे, दैट इज़ नाउन। नाउन का मतलब क्या है इन इंग्लिश टर्म? या आपको कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी तो पड़ेंगी समझने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ ए इंग्लिश टर्म, नाउन, but you have to fit in mind that anything you see or feel or just express anything, तो जो कि तुम देखते हो, आई थिंक एवरीथिंग इज़ नाउन। तो नाउन क्या है? किसी भी आदमी, जगह या चीज़ माने कोई भी वस्तु, ये तीनों में से कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। उसको नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन आदमी हो गए जिसमें कि सारी दुनिया आती है, आई मीन टू से ह्यूमन बींग्स, और प्लेस कोई जगह का नाम हो गया, जैसे कि आप ताजमहल, आगरा, दिल्ली, रोड, घर, मॉल,
ऑफिस, ये जगह हैं, कोई भी जगह जिसका नाम होता है, जिसका नाम है, दैट इज़ नाउन। प्लेस, नेम, प्लेस और थिंग, चीज़ के बारे में, जैसे कि यू कैन से द मोबाइल, यू कैन से द ईयरफोन, यू कैन से द माइक, यू कैन से एनीथिंग दैट यू सी एंड यू यूज़ और एनीथिंग एल्स। तो ये सब नाउन है। चलिए, नाउन तो हो गया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टेप, दैट इज़ प्रोनाउन। देखिए, कभी क्या होता है, आप जैसे बात करते हैं हिंदी में कि जो राजीव है, आई एम नॉट यूजिंग द राजीव अगेन, ओके, राजीव की जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड से नेम, जैक, इट्स इंग्लिश नेम। वेल, जैक इज़ वेरी हैंडसम, जैक इज़ वेरी हैंडसम, जैक बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही हैंडसम है। वेरी सिंपल सेंटेंस। तो जैक क्या है? नाउन है। ओके, हैंडसम मैन और जैक इज़ वेरी हैंडसम। वेल, जैक नाउन हो गया। अब जैक की जगह हम बोलें ही इज़ वेरी हैंडसम। ही, आपको अगर पता हो कि ही और शी, ही होता है पर्सन मेल के लिए, शी होता है फीमेल के लिए, तो इट्स वेरी सिंपल। ही always use, we always use with a male pronoun as a pronoun। तो ही को हम जैक के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैक की जगह ही आप कर दीजिए। तो क्या हुआ? ही इज़ वेरी हैंडसम। पहले क्या था? जैक इज़ वेरी हैंडसम, तो हमने ही को जैक की जगह यूज़ किया। कोई लड़की होती, मान लो जिल, जिल इज़ वेरी स्मार्ट, सो जिल फीमेल है तो उसकी जगह हम शी यूज़ कर सकते हैं। तो अब प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन इज़ द थिंग दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या हुआ? नाउन की जगह में जब हम किसी ही या शी या फिर अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए इट यूज़ करेंगे। जब उसकी जगह में कोई यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, उसका नाम नहीं लेते या फिर उसका डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेते या फिर उसके बारे में कुछ बताते नहीं, डायरेक्ट हम क्या कहते हैं वो। जैसे कि मैंने कहा सपोज़ दैट कि राहुल बहुत बीमार है, उसको बुखार है। ये तो बहुत सिंपल हुआ ना, राहुल बहुत बीमार है। तो राहुल क्या है? बहुत बीमार है। वो ही इज़ ही हैज़ अ फीवर, तो उसका ही किसके लिए यूज़ हुआ? राहुल के लिए। तो राहुल की जगह हम हर बार राहुल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो अगर आपको मैं कहूँ सपोजिंग से सोनू बहुत ही अच्छा आदमी है, सोनू गाना गाता है, सोनू पानी पीता है, सोनू पंखा चलाता है, सोनू क्रिकेट खेलता है, सोनू पढ़ने जाता है। इट्स अ लिटिल बिट ऑड, ये मुझे अजीब सा लगेगा ना ऐसा बोलने में। तो ऐसी जगह हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे तभी अच्छा लगेगा। अगर हम सोनू को हर बार यूज़ करेंगे, दैट्स गोना बी अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग एंड वी आर नॉट गोना इंटरेस्टेड इन द टॉक। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब तभी हम लोगों को क्या है ना कि कुछ सेंटेंस, कुछ बातें हैं जो ज़बान से बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और उन बातों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप अगर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो और अच्छी लगेगी। जैसे कि मैं बोलूँ सोनू गाना गाता है, सोनू सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद अगर मैं उसकी जगह कहूँ वो स्कूल जाता है, ही ऑल्सो गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल भी जाता है। तो इस तरीके से कितना अच्छा एक स्टोरी और एक डिस्क्रिप्शन बनता जा रहा है कि उसके बारे में एक अच्छी सी स्टोरी या फिर उसके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। वेल एनीवे, इट्स वेरी लॉन्ग। तो नाउन मैंने बताया, जो कि हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिटेलिंग सेशन नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग के लिए। तो इंटरेस्टिंग आपको करने के लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें सिंपल तौर पे आपको समझ में आ जाए। धीरे धीरे आप इंटरेस्ट लेंगे, तब आप जाके उस चीज़ में एक्साइटमेंट बढ़ेगी। तो आप हो सकता है तब मेरी वीडियोस न देखें, मेरे से अच्छे वाले टीचरों की वीडियो देखेंगे या फिर मेरे से अच्छे वाले चैनल्स देखेंगे। मैं जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, मेरे से अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे आप, आई एम श्योर। बट फॉर नाउ तो प्रोनाउन हो गया। चलिए अब चलते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है कि किसी चीज़ का होना
या करना पाया जाए। एक बहुत ही लिटरल वर्ड है और बहुत ही आई थिंक ये जो मैंने बोला ना, ये शायद करीब करीब सभी किताबों में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इट्स रेगुलर वर्ड्स। तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वर्ब क्या है? किसी भी चीज़ का होना या करना पाया जाए। इसको आप समझिए, वर्डिंग पे मत जाइए, समझिए का मतलब ये है कि आप माइंड में फिट कीजिए कि वर्ब होता क्या है। जैसे कि आई एम जस्ट गोइंग, मैं जा रहा हूँ। क्या हो रहा है इसमें काम? जा रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ इसमें? स्पीक इज़ द वर्ब। स्पीक, ING, स्पीक रूट वर्ड लो आप, जिसमें आपका मेन वर्ड है स्पीक हो गया। आई एम डूइंग अ वर्क, डू, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूँ। तो वॉच क्या हुआ? वॉच, ये हुआ हमारा रूट वर्ड जो कि है वर्ब। तो मैं कर क्या रहा हूँ? वर्ब। आई एम वॉचिंग, वॉच कर रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ हो रही होती है या फिर कोई कर रहा होता है, जैसे कि इट्स रेनिंग, तो इसमें रेन इज़ द वर्ब। हो रही है ना, आप कर तो नहीं रहे, इट्स नेचुरल। ओके वेल एनीवे, तो ये आपको समझ में आया वर्ब क्या है? जो चीज़ हो रही होती है या फिर आदमी करता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। वेल लेट्स मूव ऑन, थोड़ा आगे और जाएंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कभी बात करते हैं। अब थोड़ी देर पहले आपने ये भी सुना है कि नाउन होता है जिसके बारे में हम कभी कुछ देखते हैं, कोई भी चीज़ हमको दिखाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। और सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी एक आपका क्या बोलते हैं उसे, कोई भी बात A to Z। मैं आपको बताऊं, मैं पानी पी रहा हूँ, ये एक बात हुई ना। मैं कुछ कर रहा हूँ, वर्ब है उसमें, पानी पीना, और पीना इज़ द वर्ब। पानी क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, वो छोड़ो, पहले मैं सब्जेक्ट बताऊँ। मैं जिसके बारे में बात हो रही, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आप पानी पी रहे हैं, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। यू कैन से दैट द फैन इज़ ऑन, पंखा चल रहा है। द फैन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। किसके बारे में बात हो रही? फ़ैन के बारे में। तो फ़ैन क्या है? सब्जेक्ट है। चलिए, सब्जेक्ट समझ में आया। सब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ के बारे में बात होती है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। स्पेशली उसके बारे में जब रिलेट करता हूँ, मतलब कि उसके बारे में, खासकर उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि पानी बहुत गंदा है, द वाटर इज़ डर्टी और फिल्दी, और यू कैन से ऑल्सो filthy is not the proper word, but water is contaminated। तो पानी बहुत गंदा है, the water is contaminated। तो पानी क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में। तो पानी क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट द सेंटेंस। चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी बात हो, बात आप करते हैं ना, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, ये बात हुई। आप क्यों उधर जा रहे हैं? या फिर आप जा रहे हैं किधर? आप ताजमहल जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, सॉरी ताजमहल जा रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर दैट। आप खाना खा रहे हैं, मुझे पानी दीजिए, गिव मी वाटर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पूरे सेंटेंस में, किसी भी बात में, आई मीन टू से, सेंटेंस को मतलब बात ही बोलते हैं। किसी भी बात में क्या या किसको लगाने पे जो आंसर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं आपको जो इंग्लिश आपको मैं आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू इज़ दैट ट्रांसलेशन। मैं आपको जो ये वीडियो है या फिर जो भी मैं नेक्स्ट सेशन करूँगा, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द ट्रांसलेशन, नॉट प्रॉपर इंग्लिश। तो अगर आपको एज अ इंग्लिश मीडियम या फिर आपको एज अ द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश you have to progress, you must go for the another channel, or you must go for the teacher who can give you the environment of the English, okay? Or you are in English medium, then it's better, or it's very very good for you. तो अगर आप
एक इंग्लिश इन्वायरमेंट के हिसाब से सीखना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड चैनल फॉर यू। और अगर आपको ट्रांसलेशन के थ्रू धीरे 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 चलना है, जैसे कि मैं प्रोग्रेस किया, मुझको भी कोई, आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली एंड आई कुड नॉट अफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आई वॉज ऑल्सो अ किड हु वॉज स्कूल गोइंग लाइक अ वेरी सिंपल पीपल, सिंपल किड्स। तो मैं भी वो एक ऐसा ही आदमी था जहाँ पे मैं सब लोगों की तरह क्या बोलते हैं उसे, सरकारी स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे आई थिंक nobody knows how to speak a proper English. Actually, I'm also not aware of them, but actually what I have learned through my experience, I'm just giving you the whole insight. तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं जैसे मुझे इंग्लिश मीडियम का एनवायरनमेंट नहीं मिला, मैं कभी, आई थिंक द होल, मेरे पूरी लाइफ में मैं कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं गया नहीं पढ़ने। एक्चुअली आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए मुझे उतनी इन्वायरमेंट में उसी हिसाब से नॉलेज नहीं, जैसे कि वो थ्रू स्पीकिंग। मैं क्या किया, धीरे 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 मैं ट्रांसलेशन के थ्रू मैं आई हैव बीन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो मैं ऐसा तभी बन पाया, और ये जो भी मैं अभी आपके सामने आई एम जस्ट गिविंग यू द फुल इनसाइट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ just experiencing the things by step. तो खैर, अगर आपको उस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए तो आई थिंक द अदर चैनल आर बेटर दैन दिस। और अगर आप ट्रांसलेशन के थ्रू चाहिए तो आई थिंक यू हैव कम एट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। वेल एनीवे, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या था कि किसी भी बात में क्या या किसको लगाने पे जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? चॉकलेट। कितना क्विक आंसर मिला, बहुत जल्दी आंसर मिला। इसे क्या बोलेंगे? चॉकलेट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या खा रहे हैं? चॉकलेट खा रहे हैं। मैं उसको जानता हूँ। किसको जानता हूँ यार? मैं रमेश को जानता हूँ। ये रमेश, राघव, राजा, राम, ये वर्ड मेरे दिमाग से नहीं जा रहे। आई एम ट्राइंग यू नो लेट नॉट एक्सप्रेस, ओके, लेट्स नॉट एक्सप्रेस। तो मैं क्या बोला था? रमेश उससे मिलने जा रहा है। किससे मिलने जा रहा है? रमेश एक लड़की से मिलने जा रहा है। एक लड़की क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस इज़ हाउ वी फाइंड ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट पाने का तरीका। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली आई वुड से एज मच सिंपलर एज एनी अदर थिंग्स। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट हम निकाल सकते हैं। ओके, डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले हम आप ये डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, बचा क्या? प्रेडिकेट खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रेडिकेट तो ये होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी जितना बचे वो प्रेडिकेट। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और बाकी सब छोड़ दो, खाना खा रहा है, पानी पी रहा, पूरा वर्ब सब कुछ मिला के प्रेडिकेट होता है, वो सब छोड़ दो। आपने जो है 4-5 चीज़ें सीखी, इससे आप एक्सपीरियंस करो, लिख लो, या फिर माइंड में फिट कर लो। यू हैव टू ट्राई इट एवरी डे टू थिंक दैट व्हाट इज़ दैट। ये आप हिंदी में अगर कन्विंस कर पाएंगे अपने आप को तो आई थिंक इट्स बेटर। हाँ, एक और चीज़, एडजेक्टिव शायद आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। एडजेक्टिव क्या है? कोई भी चीज़ की खासियत बताई जाए। अब आप इतना सिंपल है कि आई थिंक इट इज़ मच मोर सिंपलर दैन ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव क्या होता है? जिस चीज़ की हम खासियत बताएं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, कलर में या उसकी फीलिंग में या फिर उसके स्पेशल उसके अंदर टैलेंट है उसमें, या फिर उसके अंदर क्या चीज़ खासियत है, दैट इज़ एडजेक्टिव। जैसे कि I've worn the blue t-shirt। तो ब्लू क्या है? इज़ द कलर। एक टी शर्ट की खासियत बता रहा है ये ब्लू कलर की है, इसकी स्पेशल चीज़ बता रहा है कि हाँ ये है। माई मोबाइल फ़ोन इज़ iPhone, सो एंड iPhone इज़ गोल्डन कलर्ड। ये मेरा गोल्डन कलर का आईफोन है। माई iPhone इज़ गोल्डन कलर्ड iPhone। तो
गोल्डन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वो बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। ही इज़ एडमेंट, ही इज़ एन एडमेंट, बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। यू कैन से अड़ियल। सो एडमेंट इज़ एन अड़ियल इन हिंदी। तो एडमेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स to English, and this is the basic and fundamental steps you have to think, or you have to fit it in your mind, okay? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई ज़्यादा खास टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लो, एक बार कर लो, या फिर पर्ची में लिख लो। मैं आपको बताऊं कि मैं वर्ड्स कैसे याद करता था। एक छोटी सी डायरी बनाई थी। डायरी के पेज को फाड़ा, बीच में से वो सुई धागा होता है ना, उससे लगाया। उसके बाद उसको एक बुक की तरह छोटी सी बनाई, छोटी सी, इतनी कि पॉकेट में आ जाए और पता भी न चले। तो वैसी बनाई। बनाने के बाद उसमें रोज़ 3 words आई वुड राइट इट डाउन, एंड देन आई वुड एवरी half an hour, every 2 hours, every 5 hours, every 3 hours I would watch them. सुबह लिखता और दिन भर में कम से कम 3 या 4 बार तो देख ही लेता कि क्या यार भूल गया। पहले तो ऑटोमेटिक माइंड में बैठा लेता कि हाँ ये वर्ड है, उसको याद करता। कभी कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद अचानक से वो याद करते यार आज कौन से वर्ड थे। फिर अचानक से आता वो था, तीसरा भूल गया, वेयर इज़ द थर्ड। निकाला डायरी, देखा, फिर से पॉकेट में रख दी। दैट्स हाउ आई लर्नड वर्ड्स। और माशाल्लाह आई एम ओके, आई थिंक विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आई थिंक दैट्स ओके। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में लेट्स वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ऑल्सो फंडामेंटल बट अ लिटिल बिट हार्ड, नॉट हार्ड फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल. For me, it was very hard. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice time.